आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। नेहरू स्टेडियम बिदर में जिला स्तरीय राज्य कर्मचारी खेलकूद उद्घाटन समारोह किया गया आयोजित। हिजाब मामले पर दिए गए फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया, कहा मैं हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले से सहमत नहीं हूं। पंजाब में मुफ्त बिजली के तौर पर पहली गारंटी 1 अप्रैल से होगी लागू, केजरीवाल ने किया था वादा। कांग्रेस मुझे निष्कासित करे, पार्टी टिकट बेचने के आरोपों पर भड़के हरीश रावत। अखिलेश यादव ने पोस्टल बैलेट का मुद्दा उठाया, ट्वीट कर बोले 304 सीटों पर हुई सपा गठबंधन की जीत। टीएमसी में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल लोकसभा सीट से जा सकते हैं लोकसभा। अब समाचार विस्तार से। जिला पंचायत युवा अधिकारिता एवं खेल विभाग बिदर की ओर से नेहरू स्टेडियम बिदर में जिला स्तरीय राज्य कर्मचारी खेलकूद उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें एसपी डेक्का किशोर बाबू, जिलाधिकारी गोविंदा रेड्डी, सीएस जोहरा नसीम, बाबू वाली और दूसरे उपस्थित रहे। कर्नाटक राज्य सरकारी नौकररा संघ बिदर के जिला अध्यक्ष श्री राजेंद्र कुमार गुंदगे ने इस समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मशाल जलाई गई, खिलाड़ियों ने मशाल लेकर दौड़ लगाई और परेड कर सलामी दी। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा की रिपोर्ट। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತಸವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ। ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ। ಈ ಥರ 1-2-3 ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು। ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೆಂಟಲಿ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್ in all aspects, so please pursue your sports activities. I wish you all the best, health, happiness. Thank you for inviting me. I'm very happy to be amongst all of you. Thank you, all the best. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್ ಪಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ನು ಸಹಿತ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಟರ್ನು ಸಹಿತ ನಿಜ। ಸೊ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ। ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಹೆಸರನ್ನು ತಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ। ಯಾಕೆಂದರೆ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಾ। ವುಮೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಹಿತ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಡೂ ಸಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಸಿಲು ಏರಿಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ। ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್। ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ। ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬರು, ನಾವು ಸಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಬೇಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8-9 ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಾಯಿತು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ। ಬಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರದ್ದು ಜಂಜಾಟದಿಂದ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದು, ಸೊ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೀವರ್, ಸೊ ಪ್ರೆಷರು ಟೆನ್ಷನ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಉಳಿದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ। ಯೂಶಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 50 ವರ್ಷ ದಾಟಿದವ್ರಿಗೆ BP ಶುಗರ್ ಖಾಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ। ಸೊ ಇಂಥ ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮದು ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು। ಇದು ಒಂದೇ ದಿವಸದ ಒಂದು। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद कई मुस्लिम नेताओं ने इसकी आलोचना की है। अब इसमें कर्नाटक के छात्र भी कूद गए हैं। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद कर्नाटक के एक शहर में परीक्षा हॉल से परीक्षा दिए बगैर बाहर आने का मामला सामने आया है।
रिपोर्ट में कर्नाटक के यादगीर के सुरापुरा तालुके के कुंबावी सरकारी कॉलेज में कुछ छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया और वे हाल से बाहर आ गए। कॉलेज से बाहर आए ये छात्राएं हिजाब पहनकर ही परीक्षा देने पहुंची थीं। छात्र प्रारंभिक परीक्षा देने आए थे। परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू हुई थी, लेकिन जैसे ही कोर्ट के फैसले के बारे में इन्हें पता चला तो ये लोग हाल से बाहर आ गए और परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। AIMIM के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब मुद्दे पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, मैं हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले से सहमत नहीं हूं। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि याचिकाकर्ता फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया कि वो हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले से सहमत नहीं हैं। फैसले से असहमत होना मेरा अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि न केवल AIMPLB बल्कि अन्य धर्मों के संगठन भी इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। कर्नाटक हिजाब विवाद के मामले में हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। इसे लेकर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अली कादरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को बाहर निकलते वक्त अपने चेहरे और जिस्म को ढकना होगा, ये कुरान का हुक्म है। एक न्यूज़ चैनल पर एक शो के दौरान कादरी ने कहा, हाईकोर्ट का हम मान रखते हैं। हिंदुस्तानी होने के साथ साथ मैं एक मुसलमान हूँ। हिंदुस्तानी होने के नाते मैं संविधान को सबसे ऊपर मानता हूँ और मुसलमान होने के नाते मैं कुरान के एक एक लफ्ज़ को मेरी अपनी ज़िंदगी का मकसद मानता हूँ। इस पर चलना मेरा ईमान है। कुरान में अल्लाह ताला ने खुले लफ्ज़ में कहा है कि औरतों को कह दो कि जब भी वो बाहर निकलें अपने चेहरे को, अपने जिस्म को ढक कर निकलें। कांग्रेस पार्टी के नेता हरीश रावत ने कांग्रेस से अनुरोध किया है कि पार्टी उन्हें निष्कासित कर दे। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस के चुनाव प्रचार प्रमुख रहे हरीश रावत के अनुसार उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों से वे काफी दुखी हैं। आज एक ट्वीट करते हुए हरीश रावत ने लिखा कि पद और पार्टी टिकट बेचने का आरोप अत्यधिक गंभीर है और यदि वे आरोप एक ऐसे व्यक्ति पर लगाया जा रहा है जो मुख्यमंत्री रहा है, जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा है, जो पार्टी का महासचिव रहा है और कार्य समिति का सदस्य है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लोगों को दी गई गारंटी को लागू करने के लिए कमर कस ली है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे के लिए एक रूपरेखा तैयार करने और सभी को 300 यूनिट मुफ्त बिजली सुनिश्चित करने के लिए कथित तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि हालांकि सरकार का प्राथमिक ध्यान अभी सुचारू रूप से शपथ ग्रहण समारोह सुनिश्चित करने पर है, लेकिन पार्टी के शीर्ष अधिकारी पहले से ही शिक्षा और स्वास्थ्य नीतियों के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा दी गई पहली गारंटी 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने को 1 अप्रैल से लागू किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को 51.5% वोट मिले थे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस हिसाब से देखा जाए तो सपा गठबंधन को 304 सीटें मिली हैं, लिहाजा चुनाव में हमारी जीत हुई है। अखिलेश यादव ने अपने एक ट्वीट में पोस्टल बैलेट का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट चुनाव का सच बयान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकारी कर्मी, शिक्षक और मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया। उन्होंने ट्वीट के आखिर में लिखा कि सत्ताधारी याद रखें, छल से बल नहीं मिलता। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष श्री मायावती ने कहा कि मौजूदा चमचा युग में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मिशन पर डटे रहना बहुत बड़ी बात है। बसपा अपने आंदोलन के दम पर इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है। वो बसपा संस्थापक कांशीराम की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर रही थी। उन्होंने बाद में जारी बयान में कहा कि देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अन्य उपेक्षित वर्गों को लाचारी की जिंदगी से निकालकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के बसपा के संघर्ष के रूढ़ संकल्प के साथ लगातार डटे रहना ही कांशीराम को सच्ची श्रद्धांजलि है। यूपी के हरदोई जिले से समाज को शर्मनाक कर देने वाली खबर आ रही है, जहां कुछ लोगों ने पुलिस वालों की वर्दी ही फाड़ दी। कोतवाली शहर क्षेत्र के गुरु गुज्जा गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सिपाही के साथ कुछ दबंग लोग मारपीट कर रहे हैं। मारपीट में वर्दी भी फटी हुई है। इस संबंध में मशहूर कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जबकि तीसरा फरार है। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि पूरे मामले में पूछताछ और कार्रवाई की जा रही है। मामला कोतवाली शहर क्षेत्र का है। कानपुर मार्ग पर गुरु गुज्जा गांव के पास पीआरवी ड्यूटी पर तैनात सिपाही राहुल गौतम अपने साथी नीरज अवस्थी के साथ जा रहे थे। गाड़ी तेज रफ्तार में ओवरटेक करने को लेकर कार सवार 3 युवकों से कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद हमलावर युवकों ने भीम गुप्ता, मनीष सिंह और अमित त्रिवेदी ने सिपाही राहुल गौतम व होमगार्ड नीरज अवस्थी के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें एक की वर्दी भी फट गई है। इस तरह का मारपीट और धक्का मुक्की का लाइव वीडियो भी लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस वीडियो की जानकारी होते ही कोतवाली शहर पुलिस मौके पर पहुंचकर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस साल पहली बार हिंदी की एक कृति को बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। हर साल इन्हीं दिनों में इस पुरस्कार के लिए नामित होने वाले दुनिया भर के लेखकों की सूची जारी की जाती है। इस बार इस सूची में भारत की गीतांजलि श्री के अनुदित उपन्यास टोम्ब ऑफ सैंड को शामिल किया गया है। पहली बार किसी हिंदी रचना को इस सूची में स्थान मिला है। गीतांजलि श्री का अनुदित हिंदी उपन्यास टोम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध 13 पुस्तकों में से एक है। रेत समाधि शीर्षक से लिखे गए मूल हिंदी उपन्यास का डेजी रॉकवेल ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ये एक 80 वर्षीय महिला की कहानी है जो अपने पति की मृत्यु के बाद बेहद उदास रहती है। आखिरकार वो अपने अवसाद पर काबू पाती है और विभाजन के दौरान पीछे छूट गए अतीत की कड़ियों को जोड़ने के लिए पाकिस्तान जाने का फैसला करती। कभी भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय चेहरों में शुमार रहे पूर्व अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अब कांग्रेस से होते हुए तृणमूल कांग्रेस के हो गए हैं।
उन्होंने खुद ट्विटर के जरिए इसकी सूचना दी है। इसमें उन्होंने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को बंगाल टाइग्रेस भी बताया है। सिन्हा ने लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी अपनी बंगाल टाइग्रेस ममता बनर्जी के आमंत्रण पर मैंने टीएमसी की सदस्यता ले ली है। उनका नेतृत्व जांचा परखा और सफल है। अब मैं एक महान महिला के प्रभावशाली नेतृत्व में संघर्ष करूंगा जो सही मायने में आम जनता की नेता है। बताते चलें कि फिल्मों से राजनीति में आए शत्रुघ्न सिन्हा बिहार की पटना लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के हाथ में भाजपा की कमान आने के बाद उनकी वे खुलकर आलोचना भी करते रहे हैं। इसके बाद भाजपा ने उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट नहीं दिया। इससे नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी। खबरों की माने तो टीएमसी शत्रुघ्न सिन्हा को बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बना सकती है। कृति सेनन इन दिनों अक्षय कुमार और अपनी टीम के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे की रिलीज के लिए तैयार हैं। एक्ट्रेस अपनी फिल्म का प्रमोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। 18 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फरहाद सामजी डायरेक्टरेट फिल्म में कृति सेनन, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वारसी और पंकज त्रिपाठी भी शामिल हैं। हाल ही में फिल्म के स्टार्स ने मुंबई से दिल्ली तक का सफर ट्रेन से तय किया और ट्रेन में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। कृति सेनन ने इंस्टाग्राम पर सबके साथ एक मस्ती भरा वीडियो शेयर किया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। नेहरू स्टेडियम बीदर में जिला स्तरीय राज्य कर्मचारी खेलकूद उद्घाटन समारोह किया गया आयोजित। हिजाब मामले पर दिए गए फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया, कहा, मैं हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले से सहमत नहीं हूँ। पंजाब में मुफ्त बिजली के तौर पर पहली गारंटी 1 अप्रैल से होगी लागू, केजरीवाल ने किया था वादा। कांग्रेस मुझे निष्कासित करे, पार्टी टिकट बेचने के आरोपों पर भड़के हरीश रावत। अखिलेश यादव ने पोस्टल बैलेट का मुद्दा उठाया, ट्वीट कर बोले 304 सीटों पर हुई सपा गठबंधन की जीत। टीएमसी में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल लोकसभा सीट से जा सकते हैं लोकसभा। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 20.7। धन्यवाद।